Assalamu alaikum, dear students. This is Dr. Zubia Israr Ahmed. Today, we people will start with the new topic that is known as theory of supply. This is the continuation of previous topic, demand and supply price mechanism, elasticity, part 1. In this chapter, we will cover theory of supply in detail. As we know that the process of an economic activity have two participants, consumers and producers. Consumers are usually turning their wants and needs into the demand in terms of price, though producers produce goods or services and then supply it into the market again in terms of prices. This is the general phenomena of economic activity that we people have discussed before. Now, what is supply? Supply indicates how much of a good producers are willing and able to offer for sale per period at each possible price while keeping other things remain constant. Supply is always associated with the producer's willingness and ability for offering a particular product for sale into the market at a particular price, without which it is not complete if there is no existence of willingness and ability. Means producer must have sufficient amount of resources available, and they are also pretty much interested for producing such good, and then supply it into the market. If you will see these two pictures, they are totally different with each other. You could say that these are contrast with each other. One picture, the first one shows the aisles of the shelves of the aisles are completely filled with the stock, though the rest of the shelves are empty in the next picture, which indicates that the first picture shows that stock is fully available and there is existence of supply. Now the next picture indicates shortage into the market. अगर हम यहाँ पर एक और बात डिस्कस करते चलते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है स्टॉक एंड सप्लाई. स्टॉक और सप्लाई में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है. अगर प्रोड्यूसर अपनी जो भी पर्टिकुलर कमोडिटीज प्रोड्यूस करता है, तो अगर वो तमाम के तमाम प्रोडक्शंस को हम सम कर लें तो दैट इज नोन एज स्टॉक, एंड द पार्ट ऑफ द स्टॉक व्हिच हैज बीन सप्लाइड इनटू द मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ सेल, दैट इज नोन एज सप्लाई. Means the stock which has been produced once supplied into the market for sale, that is known as supply, and the production of a good is known as collection of goods, which is also known as stock. The next one was the shortage example. Okay, the next concept is quantity supplied. After getting an idea of what is supply, quantity supplied represents the number of units of a product that a firm would be willing and able to offer for sale at a particular price during a given time period. That represents, this example or definition represents that quantity supplied is related to the number of units the producer is producing at a particular price for the market at a given time period. Here we have to measure the number of units. The next concept is the law of supply. The law of supply states that as price of a particular product increases, quantity supplied for that product will also increases or vice versa, while considering other factors remain constant. Law of supply is similar as the law of demand, but the result is contra with the demand. अगर हम इस डेफिनेशन में देखें तो अगेन हम ये बात करेंगे कि एक ये जो लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन है, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज अजम्पशन एंड नेक्स्ट इज कंडीशन. Assumption is key here while considering other factors constant, here while considering other things remain unchanged, या फिर हम ये भी कह सकते हैं while considering a ceteris paribus condition. अगर हम पूरे इन्वायरमेंट को साइलेंट करके ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एज अ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंक्रीजेस, द क्वांटिटी सप्लाइड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज आल्सो इंक्रीजेस और वाइस वर्सा. मींस इफ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर decreases, the quantity supplied into the market also decreases. अच्छा, यहाँ पर हम एक बात और भी डिस्कस करते चलते हैं ताकि आपके पास एक बेटर कंसेप्ट प्रोड्यूस हो जाए.
आपने जब कभी भी सप्लाई को पढ़ना है तो यू हैव टू कंसीडर योरसेल्फ एज अ प्रोड्यूसर, नॉट एज अ कंज्यूमर। और जब हम प्राइस की बात करें तो प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंक्रीजेस, इट मींस cost of production of a particular product increasing। अगर cost of production of a particular product जो है मीन्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ उसके तमाम खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी के साथ साथ उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ती जा रही है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग 1 kg, तो डेफिनेटली उसकी रिसोर्स जो इसमें इन्वॉल्व होगी वो हमने कम इस्तेमाल की है, तो उसकी प्राइस कम होगी। और अगर हमने 10 kg प्रोड्यूस करना है तो उसके साथ जो रॉ मटेरियल या उस पर जो भी हम रिसोर्स इन्वॉल्व कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को हम इंक्रीज करेंगे, तो इससे उसकी प्रोडक्शन का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई को देखते हैं तो हमें नज़र आता है बाकायदा तौर पे कि एज प्राइस इज इंक्रीजिंग क्वांटिटी सप्लाइड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, मीन्स दे इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड price of that particular commodity which has been produced. After getting an idea of what is the law of supply, हमारे पास next option है हमारे पास supply curve। Supply curve क्या होता है? Supply curve shows how much of a good producers are willing and able to sell at a given price, holding constant other factors that might affect quantity supply, या हम ये भी कह सकते हैं holding constant known price factors। इसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर कौन सा होता है? क्वांटिटी सप्लाइड, और इसके अलावा कौन सा? द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी विच हैज बीन सप्लाइड। रिमेनिंग ऑल अदर फैक्टर्स विल बी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट और अनचेंज। हम उनके इन्वायरमेंट को साइलेंट करके फिर सप्लाई कर्व को डिटरमिन करते हैं। तो अगर हमें इसका प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप ऑब्जर्व कर दें तो वी कुड फाइंड द फंक्शन विच इज नोन एज क्वांटिटी सप्लाइड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। प्राइस जो सेकंड साइड पर है दैट इज द इंडिपेंडेंट फैक्टर एंड द क्वांटिटी सप्लाइड इज अ डिपेंडेंट फैक्टर। एज प्राइस इज इंक्रीजिंग क्वांटिटी सप्लाइड इज इंक्रीजिंग और वाइस वर्सा। इसके बाद हमारे पास अगला स्टेप में डेफिनेशन की और इलेबोरेशन है, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई एंड द मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, द मार्केट सप्लाई इज रिलेटेड टू द sum of all the supplies, sum of all the individual supplies by the producers in the market। सारे प्रोड्यूसर्स की सप्लाईज को अगर सम कर लेंगे तो वो मार्केट की सप्लाई बन जाती है, और अगर सिंगल प्रोड्यूसर की सप्लाई को चेक करेंगे तो दैट इज़ नोन एज इंडिविजुअल सप्लाई। लेकिन हमने हमेशा जब कभी भी ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन करनी है तो हम हमेशा इसमें मार्केट सप्लाई ही को रेकमेंड करेंगे और वही हमारी रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होगा। सप्लाई का प्लॉट अगर देखना चाहते हैं तो अगेन इसमें एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस होता है। वाई एक्सेस पर दैट इज ऑल्सो नोन एज अ वर्टिकल एक्सेस, इस एक्सेस पर मेजर करते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और एक्स एक्सेस पर मेजर करते हैं क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड इनटू द मार्केट एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ओके, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है सप्लाई स्केड्यूल एंड द कर्व फॉर द पिज़्ज़ा का कर्व मैंने फॉर एग्जांपल डिटरमिन किया है। आपके सामने पार्शियल डिटर्मिनेशन ऑफ द स्केड्यूल भी नज़र स्केड्यूल और कर्व दोनों नज़र आ रही हैं। अगर आप स्केड्यूल के देखेंगे तो हमारे पास ये एग्जांपल जो है पिज़्ज़ा की इस वक्त मौजूद है, जिसपे हमें नज़र आ रहा है कि हमारा प्राइस पर पिज़्ज़ा मौजूद है, सेकंड साइड पे हमारे पास क्वांटिटी सप्लाई पर वीक अवेलेबल है। दैट इंडिकेट्स दैट अगर आप प्राइस स्केड्यूल को देखते हैं तो हमें साफ नज़र आता है कि as the price is increasing, quantity supplied into the market is also increasing। अगर क्वांटिटी सप्लाइड इनटू द मार्केट इज आल्सो इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये आप नज़र आएगा कि अगर प्राइस अगर मैं इसे नीचे से ऊपर की तरफ देखती हूँ तो इस तरीके से अगर इंक्रीज टेंडेंसी है, लेकिन ऊपर से नीचे जो एक्चुअल नज़र आ रहा है वो मुझे इस तरह नज़र आता है कि प्राइस पर पिज़्ज़ा जो है 15 है, फिर 12 है, फिर 9 है, फिर 6 है, इट इज़ डिक्रीजिंग टेंडेंसी इन दिस स्केड्यूल। और क्वांटिटी सप्लाइड भी इसी के अकॉर्डिंगली पहले 28, फिर 24, फिर 28। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स एंड मिलियंस में है क्वांटिटी।
और कर्व को हमने प्लॉट किया इसी तरीके से $15 पर यूनिट जो है वो वो अवेलेबल है फॉर किसके लिए, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, वो 28 मिलियंस क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरीके से जैसे जैसे उसकी प्राइस पर यूनिट डिक्लाइन होती जा रही है, उसकी क्वांटिटी प्रोड्यूस भी डिक्लाइन होती जा रही है। आपने ये तमाम देखा। अगर हम इस कर्व को मज़ीद आगे डिटरमिन करते हैं, इफ़ यूल जॉइन ऑल द पॉइंट्स टुगेदर वील बी हैविंग वन कर्व एंड दैट कर्व इज नोन एज सप्लाई कर्व। ये आपको सप्लाई कर्व नज़र आ रहा है। अगर इस सप्लाई कर्व को देखूंगी मैं, तो अकॉर्डिंग टू स्केजुअल ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। मीन्स क्वांटिटी सप्लाइड यानी क्वांटिटी एक्सेस में रिडक्शन हो रहा है एज प्राइस इज डिक्रीजिंग। और अगर मैं इसको फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑब्जर्व करूं, तो जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करती जा रही है, ऐसे ऐसे क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होती जा रही है। मीन्स अगर मैं इसे नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जर्व करूं, तो मुझे समझ में आता है कि जैसे प्राइस इंक्रीज हो रही है, ऐसे ही क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होती जा रही है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें ये पता चल जाता है कि हमने जो लॉ ऑफ डिमांड और जिस तरह देखा था, देयर वाज एन इनवर्स रिलेशनशिप। यहाँ पर हमने बात नोट की कि इन केस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, इन केस ऑफ अ सप्लाई फंक्शन, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई फंक्शन, इसमें हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर कॉजिंग मूवमेंट विच इज एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, दैट इज द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और पर्टिकुलर प्रोडक्ट मींस रिलेटेड प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट की मैं सप्लाई को ऑब्जर्व कर रही हूँ, उसी की प्राइस जो है, अगर उसमें कोई भी चेंज होता है तो वो मूवमेंट कॉज करता है। अभी आपने पिछली जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, इसको एजुअल प्लॉट करने में आपने देख भी लिया। Factors causing shift, which is increase or decrease in supply other than the price of a product, are that includes other factor, means other environmental factors, जिनको हमने जब भी law of supply की definition check की थी, तो हमने कहा था while keeping other factors unchanged। तो ये other factors हैं हमारे सारे, जिनको हमने constant रख के behavior between price of a particular commodity एंड सप्लाई ऑब्जर्व किया था। अगर हमने उनकी प्राइस और सप्लाई के दरमियान में रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया था, तो हमने चेक किया दे इज़ मूवमेंट। और अगर हम दूसरे फैक्टर्स का इफेक्ट भी चेक करते हैं, तो वो कर्व में शिफ्ट कॉज करता है। कैसे कॉज करता है, हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं इसको। अच्छा, दैट इंक्लूड्स डिफरेंट फैक्टर्स, जो हाईलाइटेड फैक्टर्स हैं वो इसमें से कुछ मेंशन किए मैंने। दैट इंक्लूड्स स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ रेलेवेंट रिसोर्सेज और गुड्स, दैट कुड बी आल्सो नोन एज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, then price of alternative goods, producers expectations, and number of producers in the market. Shift of supply versus movement along the supply curve. Mistakenly यहाँ पर demand mention है, please correct it. Okay, again in x-axis quantity supplied, in y-axis price is mentioned over here. If you can see, this is the general curve of supply curve, which indicates that there is a positive relationship between the quantity supplied and price, and the curve is upward sloping. A change in supply is not the same as the change in quantity supplied. Of course it is. Agar, for example, quantity supplied में change आता है, तो that is normally happening due to increase or decrease in price. If you can see over here, if the price have increased, the quantity supplied is also increasing, and curve will extend from A to B. ठीक है? If I am considering this point of B, you could say that Q0 to Q1. Over here, you have to check out the relationship in between. If price is increasing, quantity supplied is also increasing. That behavior is known as extension in the supply curve. And the second phenomena, which is the contra of this phenomena, that is known as contraction. That would be only happening in a situation if the price is decreasing and the quantity supplied is also decreasing. ये दो conditions आती हैं अगर if there is change in price of a related good.
क्वांटिटी सप्लाइड में तो चेंज आएगा ही आएगा, लेकिन प्राइस में भी चेंज आ रहा है इसकी। ओके, नेक्स्ट कंडीशन जिसमें हम ये चेक करते हैं कि सप्लाई कर्व जो है वो एस ए से एस बी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, यानी कि सप्लाई कर्व कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल पोजीशन से सेकंड पोजीशन की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो व्हाट इज हैपनिंग, अगर ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप होती है तो दैट इज यूजुअली हैपनिंग ड्यू टू change in any of the other factors or change in any of the other determinants which are causing increase or either decrease in supply. Right that moment of time हमें नजर आ रहा है this is an increase in supply. Due to this reason the supply curve is entirely shifted from SA to SB. ओके अब हम थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं इसमें, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जो हमने पहली नॉन फैक्टर लिया, नॉन प्राइस फैक्टर हमने कंसीडर किया था, दैट वाज चेंज इन टेक्नोलॉजी कैन लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई। दिस इंक्लूड दैट अगर टेक्नोलॉजी में इजाफा हो जाता है, यानी कि टेक्नोलॉजी में और एनहांसमेंट आ जाती है, तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं ओवरऑल सप्लाई में। क्योंकि हम पिज्ज़ा की एग्जांपल ले रहे थे, तो अगर पिज्ज़ा की एग्जांपल में हम कंसीडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें हमने न्यू टेक्नोलॉजी ली और हाई टेक ओवन का ओवन इस्तेमाल किया है हमने, तो हमें ये बात ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि पहले हम जिस ओवन में प्रोडक्शन कर रहे थे हो सकता है वो टाइम टेकिंग हो, और अब जो है वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। Means price of a product is not changing, but due to change in technology supply में इजाफा हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन फाइंड दैट के सप्लाई कर्व जो है वो एस से एस बार की तरफ चला जाता है और विल बी ऑन अ न्यू पॉइंट फ्रॉम जी टू एच, और इससे हमें नजर आता है कि एट द सेम प्राइस आर क्वांटिटी सप्लाइड इनटू द मार्केट इज इंक्रीजिंग। तो ये हमें ओवरऑल नज़र भी आ गया, इसमें मूवमेंट हुई है सिर्फ मूवमेंट की वजह से, यानी कि ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हुआ टू द राइट वर्ड एंड सप्लाई हैव इंक्रीज्ड विद इन द पोजीशन ऑफ सिमिलर price level. Similarly, we'll be having another example, that is change in the price of relevant resources. Relevant resources means cost of production. Resources that are employed in the production of a good in question, of course. Number one example हम ले लेते हैं इसमें, if the price of a mozzarella, अच्छा हमारी वही बेसिक एग्जांपल रहेगी पिज्ज़ा की, क्योंकि हमने पिज्ज़ा का ही स्केजुअल ड्रॉ किया था। तो अब हम बात करें कि if the price of a mozzarella cheese falls, यानी वो डिक्लाइन हो जाती है, तो cost of production will also decline for pizza. तो इससे हमें क्या नज़र आता है कि अगर cost of production of pizza decline होती है, तो it means कि supply of a pizza will increase. Conversely, if the prices of some other relevant resources increase हो जाती हैं, means for example कोई और फैक्टर जैसे यू कुड से दैट फ्लावर की प्राइस इंक्रीज हो जाए, या फिर हम चिकन की प्राइस इंक्रीज कर लें, अगर फॉर एग्जांपल वी आर मेकिंग बारबेक्यू पिज्जा और एल्स। तो अगर चिकन की प्राइस में बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में सप्लाई विल डिक्रीज ड्यू टू द रीजन दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गेटिंग मोर एक्सपेंसिव। इसके बाद हमारे पास है चेंजेस इन producers expectations. अच्छा, changes in producers expectations are playing a vital role again. इसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर प्रोड्यूसर को ये समझ में आता है कि आज के बजाय वो अगर एक हफ्ते के बाद प्रोडक्ट को सेल करेगा तो मार्केट में इसकी डिमांड मज़ीद बढ़ जाएगी और वो चीज़ जो है एक्सपेंसिव होके बिकेगी। तो ऐसी सिचुएशन में वो करंट प्राइसेस यानी कि करंट टाइम में उसकी सप्लाई को रिड्यूस कर देगा और फ्यूचर टाइम में उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ये दोनों चीज़ें हमें नज़र आते हैं, इससे हमें सप्लाई का कर्व भी शिफ्ट कर रहा है। अच्छा, जिन दोनों एग्जाम्पल्स में अभी तक मैंने डिस्कस किया है, दैट प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्टेशंस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों पर मैंने आपको ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं किया। दैट इज़ फॉर यू एज एन असाइनमेंट। आप लोग इसके ग्राफ्स खुद प्लॉट कीजिएगा जिस तरीके से हमने टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पर ग्राफ को प्लॉट किया था। इसके बाद जो है हम चेक करते हैं नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट, अगर एक सिंगल प्रोड्यूसर इनटू द मार्केट होता है तो सप्लाई कम होती है, और अगर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट बढ़ जाते हैं तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। ये भी आपके पास एक और केस है अदर डिटर्मिनेंट्स में। तो व्हाट यू
guys have to do for, आपको जितने भी जो केसेस अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिनके मैंने आपके साथ ग्राफ प्लॉट करके नहीं बताए बल्कि आपको इन जनरल बता दिया है, तो इन फॉर योर प्रैक्टिस गाइस यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ्स बाय योर ओन. हर एक कंडीशन पे दो दो ग्राफ्स बन सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर इंक्रीजिंग, सप्लाई इंक्रीजिंग. इफ द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आर डिक्रीजिंग, सप्लाई इनटू द मार्केट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग. आप कोई भी एग्जांपल डिटरमिन करके इनके ग्राफ्स आराम से प्लॉट कर सकते हैं. कंसीडर इट एज योर असाइनमेंट. Okay, fine. अब हमारा जो last topic है, this is the conclusion of the topic, that is a change in supply versus change in quantity supply. अगर मैं इसको summarize करती हूँ तो मुझे नज़र आता है कि change in price of a good or service leads to a change in quantity supply. That would be only happening when there is movement along the curve. इसमें अगर प्राइस बढ़ती है या कम होती है, जैसे इस सिनेरियो में नज़र आ रहा है कि प्राइस कम हुई है, तो हमने देखा कि क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो गई है, और जो पॉइंट था वो भी हमें एरो से समझ में आ रहा है कि वो रिड्यूस हुआ. इसका मतलब है देयर इज श्रिंकेज इन द क्वांटिटी सप्लाइड व्हिच इज आल्सो नोन एज contraction in quantity supplied. The second condition is the change in cost, उस पर्टिकुलर कमोडिटी की कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इनपुट प्राइसेस, उसमें जो भी अदर फैक्टर्स इस्तेमाल हुए थे, resources, technology, the prices of the related goods or services can lead to a change in supply that would shift the supply curve to the left or either to the right. ये अकॉर्डिंग टू द अदर फैक्टर्स फिनोमेना कंसीडर किया जाता है. जैसे वो फैक्टर रिस्पॉन्स कर रहा है उसी तरीके से सप्लाई पर इफेक्ट आएगा, या तो उस फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ेगी या फिर कम हो जाएगी. Okay students, thank you very much for this lecture today. Today we have covered a complete knowledge about theory of supply. I hope you guys got the better knowledge about it. Thank you very much for now today.